যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের অন্তর্লীলায় আছি, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 43 থেকে কন্টিনিউ করব। চৈতন্য চরিতামৃতম অন্তর্লীলা 13.43 অনওয়ার্ডস, 43 নম্বর শ্লোক। তপন মিশ্র চন্দ্রশেখর দোহারে মিলিলা। बोलेंगे तब तपन मिश्र चंद्रशेखर दोहरे मिलिला। তার থাই প্রভুর কথা সকলই কই শুনিলা। तार ठाए प्रभुर कथा सकल ई सुनिला। মথুরাতে আসি মিলিলা সনাতনে, मथुराते आसी मिलिला सनातने। দুইজনের সঙ্গে দুহে আনন্দিত মনে। दुई जनेर संगे दुहि आनंदिते मने। সনাতন করাইল তারে দ্বাদশ বন দর্শন। सनातन कराइले तार द्वादश वन दर्शन। গোকুলে রহিলা দুহে দেখি মহাবন। गोकुल रहिला दुहे देखी महावन। সনাতনের গুফাতে দুহে রহে এক ঠাই। सनातेर गुफा दुही रहे एक ठाई। পণ্ডিত পাক করেন দেবালয়ে যাই। पंडित पाक करेन देवालय जाई। সনাতন ভিক্ষা করেন যাই মহাবনে। सनातन भिक्षा करेन जाई महावने। কবু দেবালয়ে কবু ব্রাহ্মণ সদনে। कबू देवालय कबू ब्राह्मण सदने। সনাতন পণ্ডিতেরও করে সমাধান। सनातन पंडितर करे समाधान। মহাবনে দেন আনি মাগি অন্ন পান। महावने देन आनी मांगी अन्न पान। সমস্ত ভক্তদের আদেশ নিয়ে জগদানন্দ পণ্ডিত বৃন্দাবনের অভিমুখে চললেন। বনপথে দিয়ে ভ্রমণ করতে করতে তিনি বারাণসীতে উপস্থিত হলেন। ঠিক আছে চন্দা মাতাজি, বারাণসী। তিনি বারাণসীতে তপন মিশ্র ও চন্দ্রশেখরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। चंद्रशेखर का और एक नाम क्या है? आचार्य रत्न। आचार्य प्रभु जी। তারা তার কাছে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত কথা শুনলেন। অবশেষে মথুরায় পৌঁছে তিনি সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে মিলিত হলেন এবং তারা দুজনে পরস্পরের সঙ্গ লাভ করে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। সনাতন গোস্বামী তাকে দ্বাদশ বন দর্শন করালেন এবং মহাবন দর্শন করে তারা দুজনে গোকুলে রইলেন। তারা দুজনে সনাতন গোস্বামীর গুফায় রইলেন, কিন্তু জগদানন্দ পণ্ডিত নিকটবর্তী মন্দিরে গিয়ে নিজের জন্য রন্ধন করতেন। সনাতন গোস্বামী মহাবনে গিয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতেন। কখনো তিনি দেবালয়ে ভিক্ষা করতেন, আবার কখনো ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা করতেন। ইয়েস জ্যোতি মাতাজি। हरे कृष्णा प्रभु, उस समय एक गुफा थी, सनातन गोस्वामी वहाँ थे। यस प्रभु जी, जगदानंद पंडित would go to a nearby temple and cook for himself. बांग्ला हाँ, मतलब कि जगदानंद पंडित टेम्पल में कुक करते, तो प्रभु ऐसे अलाउ होता था क्या टेम्पल में जाके कुक करना? होता होगा, नहीं तो कैसे किया होगा। यस उनका कोई क्वार्टर्स था क्या? मतलब नहीं, वो तो लिखा है इधर रहते थे, मंदिर में कुकिंग करने के लिए जाते थे, ये लिखा है। इनके यहाँ दो आदमी कैसे गए करूँ? सनातन गोस्वामी के पास दो, तो दो कौन है? क्या प्रभु समझ नहीं है। सनातन गोस्वामी के यहाँ दोनों आदमी रहने लगे, तो दोनों आदमी कौन थे? एक तो ये पंडित थे और एक सनातन गोस्वामी। ओह अच्छा। यस पंडित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, ये डाउट तो ये मतलब फिर गोकुल में गए कि महावन में गए? यहाँ तो लिखा है महावन किए गोकुल दर्शन किया, गोकुल में जाकर महावन दर्शन किया, ऐसे लिखा है। गोकुल रोइलेन, तो गोकुल में ही देखो। জগদানন্দ পণ্ডিতের যা যা দরকার হতো তা সব সনাতন গোস্বামী জোগাড় করে দিতেন। মহাবনে ভিক্ষা করে তিনি জগদানন্দ পণ্ডিতের জন্য অন্ন এবং
পানীয় এনে দিতেন। পানীয় क्या लिखा है हिंदी में? खाने पीने की सारी वस्तुएं, 47 छूट गया। क्या छूट खाने गया? पीने की सारी वस्तुएं 47 नंबर का छूट गया। बोला था। बोले थे। हम्म, अच्छा। यस ज्योति माता जी। मतलब प्रभु जी जगदानंद पंडित टेम्पल में कुक करते थे और सनातन गोस्वामी सब डोर टू डोर जाके सब लोगों के वहां पे भिक्षा लेके टेम्पल में कभी जाते थे कुक करने, कभी ब्राह्मण के घर में, ऐसे ही ना? कुछ ज्यादा कुछ लिखा नहीं, जितना लिखा है उतना मालूम है, उसके बाद क्या करते थे मालूम नहीं। ओके। হরে কৃষ্ণ বাবুজি, দেবালয়ে ভিক্ষা মানে কি বুঝতে পারলাম? মন্দিরে, দেবালয় মানে মন্দির। একদিন সনাতনে পণ্ডিত নিমন্ত্রিলা। पूनम शाह माता जी, अशोक मिश्रा प्रभु। एक दिन सनातने पंडित निमंत्रिला, কৃত্য করিতে হো পাক চড়াইলা। नित्य कृत्य करी देह पाक चढ़ाइला। মুকুন্দ সরস্বতী নাম সন্ন্যাসী মহাজনে। मुकुंद सरस्वती नाम सन्यासी महाजने। এক বহির্বাসতে হো দিল সনাতনে। एक बहिर्वासते हो दिलो सनातने। সনাতন সেই বস্ত্র মস্তকে বাঁধিয়া। सनातन সেই বস্ত্র মস্তকে বাঁধিয়া। যোগানন্দের বাসাদারে বসিলা আসিয়া। জগদানন্দের বাসা দ্বারে বসিলা আসিয়া। জগদানন্দ পণ্ডিত জাগ্রত হয়ে গেল। একদিন জগদানন্দ পণ্ডিত সনাতন গোস্বামীকে নিমন্ত্রণ করলেন এবং তার নিত্যকৃত্য সমাপন করে তিনি রান্না করতে শুরু করলেন। পূর্বে মুকুন্দ সরস্বতী নামক এক মহান সন্ন্যাসী সনাতন গোস্বামীকে তার বহির্বাস দিয়েছিলেন। সেই বস্ত্র মস্তকে রেখে সনাতন গোস্বামী জগদানন্দ পণ্ডিতের বাসস্থানের দ্বারে বেশে বসলেন। सो बहिर्वास कुछ ऐसे उत्तरी जैसा, इसको अच्छा से पगड़ी जैसा बांधा और सनातन गोस्वामी बासस्थाने द्वारे ऐसे बसलें। यस ज्योति माता जी। प्रभु ये समझ में नहीं आया कि सनातन गोस्वामी बैक करते थे और जगदानंद पंडित का पूरा ध्यान रखते थे। मतलब ही बैक इन द एरिया ऑफ महावन एंड बॉट जगदानंद ऑल थिंग्स टू ईट एंड ड्रिंक। पर जगदानंद पंडित क्यों नहीं बैक करते थे आर्म्स के लिए प्रभु? लिखा नहीं है इधर। हाँ, लेकिन वो क्यों नहीं, मतलब सनातन गोस्वामी इतने सीनियर है, उनके लिए वो ध्यान रखते थे। कौन सीनियर है? बोता सीनियर गेस्ट है ना, गेस्ट सनातन जी के गेस्ट है। तो प्रभु हमको जो लगता है कि सनातन गोस्वामी वॉज अ मेंडिकेंट। वो गोस्वामी थे, बाबा जी थे, तो उन लोग को बहुत सेवा भी मिला था महाप्रभु से, तो उन लोग को कुकिंग करने का समय नहीं है, वो माधुकरी करके अपने जीवन यापन करते थे। और जगदानंद पंडित में भी आई डोंट नो, नथिंग इज मतलब स्पेकुलेशन हो हाँ, जाए। बट वो उनके लिए मांग के लाते थे, बैग आर्म्स करते थे और ला के देते थे जगदानंद पंडित को, और जगदानंद पंडित कुछ नहीं करते थे। दिस इज लाइक नॉट अंडरस्टूड। जो दिया है वही अंडरस्टैंड कीजिए, जो नहीं दिया है उसका ओके प्रभु। जगदानंद पंडित बना रहे थे ना प्रभु, बना रहे थे देवालय इन सब में जाकर के, कुछ नहीं कर रहे थे, ऐसा नहीं है। नहीं, कुछ नहीं कर रहे थे, मैंने वो कहाँ से ये सब जुगाड़ करते थे, वही उनका कहने का मतलब था। तो ये सनातन गोस्वामी लगता है लेके आते थे और ये बनाते थे। डोंट नो। यस राजीव। जगदानंद पंडित को तो भेज नहीं रहे थे ना, तो उनको तो वृंदावन के बारे में इतना आइडिया नहीं होगा। मालूम नहीं। नहीं प्रभु, लिखा है देखिए 49 में माता जी, जो आप बोल रहे हैं ना कि वो लाते थे और वो कुक करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। One day जगदानंद पंडित having invited सनातन to the nearby temple for lunch, मतलब कि everyday उनको नहीं बुलाते थे, एक दिन उनको invite किया lunch, finished his routine duties and began to cook। मतलब कि everyday ऐसा नहीं होता था कि सनातन गोस्वामी लाते थे, जगदानंद पंडित कुक करते थे, ऐसा नहीं है।
जगदानंद पंडित कुक करके एक दिन उनको बुलाए, इनवाइट किए सनातन गोस्वामी को। वैसे तो कोई बोला भी नहीं ज्योति माता जी के, डेली उनका घर में खाते थे। नहीं बोले ना माता जी ने कि वो लाते थे और वो कुक करते थे, तो मतलब कि हाँ, यस राजीव प्रभु। ठीक है। यस हिरणमय गौरंग प्रभु। हाँ प्रभु जी, वो जगदानंद वो कुकिंग करके प्रसाद अपने लेते थे। एक दिन उनको सनातन गोस्वामी को बुलाया, इनवाइट किया, लेकिन सनातन गोस्वामी ऐसे सूखा चना और जहाँ जहाँ पर थोड़ा वो मिल जाता है उसमें गुजारा करते थे। यस ओके। 52 नंबर श्लोक। रातुल वस्त्र देखि पंडित प्रेमाविष्ट हইলা। ज्योति माता जी। रातुल वस्त्र देखी पंडित प्रेमाविष्ट হইলা। মহাপ্রভুর প্রসাদ জানি তাহারে পুছিলা। महाप्रभु प्रसाद जानी ताहारे पुछिला। কাহা পাইলা তুমি এই রাতুল বসন। कहाँ कहाँ पाइला तुमी এই রাতুল বসন। মুকুন্দ সরস্বতী দিল কহে সনাতন। মুকুন্দ সরস্বতী দিল কহে সনাতন। শুনি পণ্ডিতের মনে ক্রোধ উপজিল। শুনি পণ্ডিতের মনে ক্রোধ উপজিল। হাতের হান্ডি হাতে লইয়া মারিতে আইল। ভাতের হাঁডি হাতে লইয়া মারিতে আইল। সনাতন তারে জানি লজ্জিত হইলা। সনাতনে তারে জানি লজ্জিত হইলা। বলিতে লাগিলা পণ্ডিত হান্ডি চুলাতে ধরিলা। বলিতে লাগিল পণ্ডিত হাঁডি চুলাতে ধরিলা। বলিতে লাগিলা পণ্ডিত হান্ডি চুলাতে ধরিলা। বলিতে লাগিলা পণ্ডিত হাঁডি চুলাতে ধরিলা। মানে 6 वर्ड्स है ना, सो दो दो दो। अच्छा। বলিতে লাগিলা পণ্ডিত হান্ডি চুলাতে ধরিলা। বলিতে লাগিলা পণ্ডিত হাঁডি চুলাতে ধরিলা। তুমি মহাপ্রভুর হও পার্ষদ প্রধান। তুমি মহাপ্রভুর হও পার্ষদ প্রধান। তোমার সম মহাপ্রভুর প্রিয় নাহিয়ান। তোমার সম মহাপ্রভুর প্রিয় নাহিয়ান। অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র তুমি ধরো শিরে। অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র তুমি ধরো শিরে। কোন ইচ্ছে হয় ইহা পরে সারি সইবারে। কোন ইচ্ছা হয় ইহা পরে সহিবারে। পারে সরিবারে। সনাতন কহে সাধু পণ্ডিত মহাশয়। সনাতনে কাহে সাধু পণ্ডিত মহাশয়। সম চৈতন্যের প্রিয় কেহ নয়। তোমার সম চৈতন্যের প্রিয় কেহ নয়। ইচ্ছে চৈতন্য নিষ্ঠা যোগ্য তোমাতে। আইছে চৈতন্য নিষ্ঠা যোগ্য তোমাতে। তুমি না দেখাইলে ইহা শিখিবে কেমতে। তুমি না দেখাইলে ইহা শিখাবে কি মাতে। যাহা শিখিবে দেখিবার বস্ত্র মস্তকে বান্ধিল। যাহা দেখিবারে বস্ত্র মস্তকে বাঁধিলা। এই অপূর্ব প্রেম এই প্রত্যক্ষ দেখিল। সেই অপূর্ব প্রেম এই প্রত্যক্ষ দেখিল। বস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না জুজায়। রক্ত বস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে নয় জুজায়। কোন প্রবাসীরে দিমু কি কাজ উহায়। কোন প্রবাসীরে দিমু কি কয় উহায়। সেই গৌরিক বস্ত্রটি, গৌরিক বস্ত্র মানে क्या कलर? रातुल वस्त्र माने सैफरन, लाल, रेड कलर, केसरिया कलर प्रभु जी। केसरिया कलर। हिंदी में केसरी लिखा है क्या? नहीं, लाल वस्त्र लिखा है। लाल। नहीं प्रभु, नीचे इंग्लिश किस लोग में में केसरिया रेड लिखा है। ओके। इंग्लिश में रेड लिखा है प्रभु। ओके। সন্ন্যাসীর का जैसे होता है। সেই গৌরিক বস্ত্রটি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রসাদ বলে মনে করে জগদানন্দ পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হয়ে সনাতন গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি রাতুল বসন কোথায় পেলে? সনাতন গোস্বামী উত্তর দিলেন যে মুকুন্দ সরস্বতী তাকে সেটি দিয়েছেন।
তা শুনে জগদানন্দ পণ্ডিত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং ভাতের হাঁড়ি হাতে নিয়ে সনাতন গোস্বামীকে মারতে এলেন। সনাতন গোস্বামী জগদানন্দ পণ্ডিতকে খুব ভালোভাবে জানতেন, তাই কেন তিনি এইভাবে ক্রুদ্ধ হয়েছেন তা বুঝতে পেরে তিনি লজ্জিত হলেন। उनको अच्छा नहीं लगा कि हमको नहीं पहनना चाहिए था ऐसे कुछ। এবং জগদানন্দ পণ্ডিত ভাতের হাঁড়ি চুলার উপর রেখে বলতে লাগলেন, তুমি মহাপ্রভুর পার্শ্বদের মধ্যে প্রধান, তোমার মতো মহাপ্রভু প্রিয় আর কেউ নেই, আর তুমি অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র শিরে ধারণ করেছো, তোমার এই রকম আচরণ কে সহ্য করতে পারে? সনাতন গোস্বামী বললেন, জগদানন্দ পণ্ডিত মহাশয়, আপনি প্রকৃত সাধু, আপনার মতো প্রিয় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আর কেউ নয়। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি এই প্রকার নিষ্ঠা আপনারই যোগ্য। আপনি না দেখালে তা আমি শিখবো কিভাবে? যেই প্রেম দর্শন করার জন্য আমি বস্তুটি মস্তকে বেঁধেছি, সেই অপূর্ব প্রেম আমি প্রত্যক্ষ দর্শন করলাম। বৈষ্ণবেরও গৌরিক বসন পড়া উচিত নয়, তাই তা দিয়ে আমার কোনো কাজ নেই। এটি আমি কোনো প্রবাসীকে দিয়ে দেব। I give to some other person, ये हम दे देंगे, हमको ये पहनना नहीं चाहिए था। এই ঘটনাটি সম্পর্কে শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন, বৈষ্ণবগণ পরমহংস ও অকিঞ্চন, সুতরাং বৈধ সন্ন্যাসীদের পরিধেয় গৌরিক বসন পরিধান করে তাদের স্বীয় পারহংসাশ্রম, হ্যাঁ প্রভু, পারহংসাশ্রম পারমহংস আশ্রম নির্দেশ বা প্রদর্শন করতে হয় না। ইয়ে জ্যোতি মাতাজি, प्रभु जी ये श्लोका 60 में क्या मतलब हुआ प्रभु जी? श्लोका का माय पर्पस स्टार्टिंग में वो बोल रहे हैं कि मेरा पर्पस। हाँ, सो मैं तो ये तो लगाया था, लेकिन आपका इससे कृष्ण प्रेम विकसित हुआ, महाप्रभु के प्रति कितना आपका आगार प्रेम है वो देखने को मिला। সেই প্রেম দর্শন করার জন্য আমি বস্ত্রটি মস্তকে বেঁধেছিলাম, টু চেক দ্যাট, मैं परीक्षा कर रहा था, और সেই অপূর্ব প্রেম আমি প্রত্যক্ষ দর্শন করলাম और हमको देखने का अवसर भी मिला। ठीक है, मतलब उन्होंने मतलब वो टर्बन जो हेड पे पहना था वो खाली चेक करने के लिए कि जगदानंद पंडित कितना प्रेम करते हैं महाप्रभु से। यस, ये नहीं समझ में आया प्रभु, लॉजिक थोड़ा सा। ये लॉजिक एकदम सिंपल है, इसमें क्या नहीं समझने का है। मतलब हेड में कपड़ा पहने खाली प्रेम चेक करने के लिए प्रभु, वो तो बिकॉज सैफरन देख के महाप्रभु को रिमाइंड करेगा ना। वो यहाँ जगदानंद पंडित के श्रद्धा भाव को भी समझे। सैफरन देख के जगदानंद पंडित महाप्रभु, तुरंत महाप्रभु क्लिक हुआ। और फिर जब उनको पता चला कि ये महाप्रभु का नहीं है और ये सनातन गोस्वामी जैसे सीनियर भक्त कोई दूसरा का बहिर्वास सर पे पहना हुआ है, तो उनका क्रोध हुआ। तो इसे यही देखने के लिए उन्होंने पहना। ये तो सब अंडरस्टूड है प्रभु। तो कोई भी सन्यासी को अगर कोई देगा तो वो तो पहन ही लेगा ना प्रभु। उसके लिए ये अभी जो तात्पर्य पढ़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, और उसमें एक लाइन भी है प्रभु तात्पर्य में जो आपने अभी पढ़ा, और वैष्णव should not accept the dress of a सन्यासी to prove his exalted position। ये क्या मतलब हुआ प्रभु? आपको तो उत्तर मिल गया। तो वैष्णव अपने कोई दूसरे सन्यासी का वस्त्र पहनेगा टू शो दैट ही इज एक्सॉल्टेड, मैं कितना एक्सॉल्टेड हूँ, ऐसा नहीं पहनना चाहिए दूसरे का वस्त्र। थोड़ा और पढ़ते हैं, क्लियर होगा, थोड़ा पूरा तात्पर्य पढ़ने से क्लियर होगा। এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন, বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবগণ পরমহংস ও অকিঞ্চন, সুতরাং বৈধ সন্ন্যাসীদের পরিধেয় গৌরিক বসন পরিধান করে তাদের স্বীয় পারমহংসাশ্রম নির্দেশ বা প্রদর্শন করতে হয় না। इंग्लिश में पढ़ा 61। Vaishnavas are liberated persons, unattached to anything material. Therefore, a Vaishnava need not accept the dress of a sannyasi to prove his exalted position. Okay. বিশেষত অদ্বিতীয় পরমেশ্বর শ্রী গৌর হরি
একদণ্ডীয় বেশ স্বীকার করায় তার পদাশ্রিত কিঙ্করেরা তার দাস অভিমানে অপ্রাকৃত চিৎবিলাস ভেদ বুদ্ধিতে বেশ গ্রহণ করার বিষয়ে তার মতো ব্যবহার করা যোগ্য বা বিধেয় বলে মনে করেন না। श्री चैतन्य महाप्रभु accepted the renounced order from a सन्यासी of मायावाद स्कूल। ये सबको मालूम है, महाप्रभु ने एक दंड सन्यासी से संन्यास ग्रहण किया भारतीय संप्रदाय मायावाद संप्रदाय से। Present day Vaishnava sannyasi, however, never think that by accepting the dress of a sannyasi order, they have become equal to Chaitanya Mahaprabhu. तो किसी को नहीं सोचना चाहिए, कोई मायावाद को नहीं सोचना चाहिए कि वो भी तो एक मायावाद संप्रदाय से दीक्षा लिया है, सो महाप्रभु और वो व्यक्ति एक ही स्तर पे है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इनफैक्ट वैष्णव एक्सेप्ट्स द सन्यासी ऑर्डर to remain an eternal servant of his spiritual master. He accepts, अच्छा आगे पढ़ते हैं। সন্ন্যাস গ্রহণ করে পরমহংস বৈষ্ণব গুরুর আশ্রয় থেকে বৈষ্ণব দাসেরা নিজেদের বর্ণাশ্রমান্বিত পরমহংস বৈষ্ণবের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার অযোগ্য জ্ঞানে অনেক সময় দৈন্য যাপন উদ্দেশ্য গুরু বৈষ্ণবের অযোগ্য সন্ন্যাস আশ্রমোচ্চিত গৌরী বসনাদি করেও থাকেন। In fact, a Vaishnava accepts the sannyasi order in order to remain an eternal servant of his spiritual master. He accepts the sannyasi order knowing that he is unequal to his spiritual master, who is Paramahamsa, and he thinks that he is unfit to dress like a Paramahamsa. Therefore, a Vaishnava accepts sannyasa out of humility, not out of pride. तो अगर कोई वैष्णव संन्यास लिया, ये इसलिए नहीं लिया कि वो भगवान जैसे एक हो गया या गुरु के जैसे एक हो गया, नहीं, अच्छा से सेवा कर पाएगा इसीलिए लिया। यही इसका सार है। अगला पैरा। সনাতন গোস্বামী পরমহংসের পোশাক গ্রহণ করেছিলেন, সুতরাং মস্তকে গৌরিক বস্ত্র বাঁধা তার উচিত হয়নি। একজন বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর পরমহংসের বেশ অনুকরণ করে নিজেকে উপযুক্ত মনে করা উচিত নয়। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু, Sanatana Goswami had adopted the dress of a Paramahamsa. Therefore, it was inappropriate for him to wear a saffron cloth on his head. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন, ত্রিনাদপি শুনিছে না, একজন নিজেকে অত্যন্ত নীচ মনে করা উচিত, কিন্তু পরমহংস স্তরে বৈষ্ণব হিসাবে মনে করা উচিত নয়। এইভাবে পরমহংস স্তরে নিচে তার অবস্থান মনে করে একজন বৈষ্ণব কখনো কখনো সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন। এইটি শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের নির্দেশ। However, Vaishnav sannyasi does not think himself fit to imitate the dress of a Paramahamsa Vaishnava. According to the principle set down by Sri Chaitanya Mahaprabhu, Trinadapi Sunichena, one should always think himself in the lowest stage, not on the level of Paramahamsa Vaishnava. Therefore, a Vaishnava will sometimes accept the sannyasa order just to keep himself below the level of a Paramahamsa Vaishnava. This is the instruction of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. हरे कृष्णा प्रभु जी, देन सनातन गोस्वामी ने गलत किया था वो जो पहन लिया था उन्होंने ताफरन। हाँ, क्योंकि वो परमहंसा वैष्णव का पोशाक सर पे पहना। एंड उनको ये कैसे मालूम चला कि ये चैतन्य प्रभु ने दिया है? आई थिंक किनको मालूम चला? इसमें ही बताया था कि उनको लगा के चैतन्य प्रभु ने भेजा है मुकुंद के थ्रू, मुकुंद सरस्वती। जगदानंद पंडित को लगा कि ये जो सैफरन जो सर पे पहना हुआ है सनातन गोस्वामी, ये शायद महाप्रभु ने उनको दिया होगा। ओके, Yes. Anybody wants to elaborate on this? Rajivan Prabhu, Pankaj Prabhu. प्रभु जी हरे कृष्णा, अभी भी मुझे ये चीज समझ में नहीं आया। एक सेकंड। Yes, Rajiv Prabhu. तो जगदानंद ने सनातन गोस्वामी को अपने घर पे मतलब जहाँ पे वो कुक करते थे वहाँ बुलाया था,
तो सनातन गोस्वामी को मुकुंद सरस्वती नाम के एक साधु ने सेफ्रन वस्त्र दिया था, तो वो उसने माथा में पहन के आ गए। तो जगदानंद को लगा कि ये महाप्रभु ने पहले दिया होगा, तो महाप्रभु का वस्त्र प्रसादी होगा, तो उसको देख के वो भाव विभोर हो गए। और जब उनको पता चला कि ये मुकुंद सरस्वती नाम का कोई साधु ने दिया, तो वो बहुत गुस्सा हो गए और उनको बोलने लगे कि मतलब गुस्सा हो गया। और सनातन समझ गए कि क्यों गुस्सा हुए और लज्जित हुए सनातन गोस्वामी। तो फिर सनातन गोस्वामी उनको थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए बोले कि आप महाप्रभु के प्रिय हैं। तो फिर बाद में जगदानंद ने जब कूल डाउन हो गए तो बोले कि तुम महाप्रभु के पार्षद हो के कैसे तुम दूसरा साधु का वस्त्र अपने मस्तक पर धारण करते हो। तो फिर जगदानंद मतलब इससे उन्होंने शिक्षा दिया कि सनातन भी एक्सेप्ट किया कि जगदानंद कितने निष्ठावान है महाप्रभु के प्रति। तो वो निष्ठा का यहाँ पे वो दिखने को मिलता नहीं नहीं, श्री भक्ति सिद्धांत सही ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर का जो भाष्य है उसमें यू वांट टू से समथिंग? यस, शशि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, साधु प्रणाम। प्रभु जी 55 में जो लिखा है कि सनातन गोस्वामी जगदानंद पंडित को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए वे कुछ कुछ लज्जित हुए, मतलब नहीं समझ में आया। जो उनको मारने के लिए हांडिया उठा ली थी। तो सनातन गोस्वामी जगन्नाथ पंडित को खूब भालोभावे जानते हैं, फिर भी परीक्षा करने के लिए ये किया था। एक्चुअली परीक्षा नहीं, कृष्ण प्रेम देखने के लिए उनका मारने के लिए उठाए थे। ये पगड़ी पहना था उनका कृष्ण प्रेम देखने के लिए। नहीं, वो तो समझ में आ गया, लेकिन वो क्रुद्ध हो गए ना, और सनातन गोस्वामी को मारने के उद्देश्य से अपने हाथ में भोजन पकाने के लज्जित हुआ अपने आप से, उन्होंने लज्जित हुआ अपने आप से कि मेरे को ये नहीं पहनना चाहिए था, ये पगड़ी। एक मायावाद सन्यासी का बहिर्वास हमारा सर पे नहीं पहनना चाहिए था, उसीलिए वो लज्जित हुआ। अपनी गलती के प्रति वो लज्जित है। लेकिन यहाँ पे लिखा किंतु सनातन गोस्वामी जगदानंद पंडित को अच्छी तरह जानते थे। हाँ, इसलिए वे कुछ कुछ लज्जित कर रहे हैं, दोनों अलग चीज है। सनातन गोस्वामी जगदानंद पंडित को अच्छा से जानते थे, ठीक है। ताई कैनो तिनी ये भी दिखाई देता है कि दोनों समकक्ष थे, दोनों समकक्ष थे, ऐसा लग रहा है। তাই কেন তিনি এইভাবে ক্রুদ্ধ হয়েছেন, यानी सनातन गोस्वामी के वो मारने का आया, ता बुझते पेरे, ये समझ के वो लज्जित हुआ। ठीक है, तो प्रश्न क्या है? आप तो सेंटेंस पढ़ रहे 2-3 बार। कौन लज्जित हुआ ये नहीं समझ में आया। प्रभु क्या नहीं समझ में आया ये मत बोलिए, क्या चीज नहीं समझ में आया बोलिए। कौन लज्जित हुआ? सनातन गोस्वामी लज्जित हुआ। मिल गया उत्तर? प्रभु क्यों लज्जित हुआ ये भी मैं 2 बार बोला। इसलिए लज्जित हुआ कि हमको ये साधु का ये सर पे नहीं पहनना चाहिए था, बहिर्वास। लेकिन उन्होंने पहना था एक्चुअली उनका प्रेम देखने के लिए। यस, राजीव प्रभु। तो जगदानंद और सनातन का एक लेवल में थोड़ी न थे। नो नो, चैतन्य महाप्रभु के खास पास मतलब वो है। सनातन इज वेरी एक्सॉल्टेड। जगदानंद पंडित को बोला था कि आप सनातन गोस्वामी के संगत में रहिएगा, ऐसे बोल के भेजा था ना। यस, पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें सनातन गोस्वामी ने उनको ये प्रेम देखने के लिए वो पगड़ी को पहना था। हाँ। और जब वो उनका रिएक्शन हुआ तो इसलिए लज्जित हुए कि वो उनको जानते थे कि जगदानंद का जैसा प्रेम है, उनको अच्छी तरह जानते थे, मतलब उनका कैसा प्रेम उनको अनुभव था, फिर भी उन्होंने उनको ये इरिटेट किया, इसलिए वो फिर लज्जित हुए। एकदम ठीक है। यस, शशि माता जी, और कुछ है? मतलब उनको लज्जित हुए देखकर वो अपना जो रख दिए मारने के लिए जो उठे थे। वो तो जगदानंद पंडित ने रख दिया वो लाठी। वही तो बोला, जब देखे कि सनातन गोस्वामी लज्जित हो गए हैं तभी तो रखे वो। इसलिए जगदा पंडित ने वो हाड़िया चूल्हे पर रख दी। वो तो नहीं लिखा है कि उसलिए लगे थे। इसलिए लिखा है ना, इसलिए जगदानंद पंडित ने वह हांडिया चूल्हे पर रख दी। इसलिए वर्ड लिखा है क्या हिंदी में? यस प्रभु जी, लिखा है, इसीलिए तो पूछ रहे हैं। बंगाली में नहीं लिखा है, बंगाली में लिखा है एवं। यस, ज्योति माता जी बोलिए। प्रभु जी, इतने एक्सॉल्टेड डिवोटी सनातन गोस्वामी के अंडर बोला जगदानंद पंडित को रहने के लिए, और जगदानंद पंडित ने इतना एंगर दिखाया, मतलब अपने सीनियर को तो
कभी भी ऐसे एंगर नहीं दिखाना चाहिए ना। आउट ऑफ प्रेम कृष्ण प्रेम केम नेचुरली। वो तो महाप्रभु को भी एंगर दिखाते थे ना, महाप्रभु को भी। हाँ, गुड पॉइंट। ओके। एंड ऑल्सो प्रभु जो पर्पट है ना उनका उसका खाली एक सार जिस्ट बताइए ना प्रभु। आई डिडंट अंडरस्टैंड स्टिल। ये परमहंस वाला ये जो है ना ये नहीं समझ में आया मुझे अभी भी। ये चीज आई रीड एट होम अगेन, बट ये चीज मुझे समझ नहीं आया लॉर्ड। ओके, यस राजीव प्रभु। मेरा एक सवाल है प्रभु। जगदानंद सनातन एक्सॉल्टेड हो सकते हैं, लेकिन एज ए पोजीशन जो है, तो सनातन चैतन्य महाप्रभु के डिसाइपल हैं और जगदानंद सनातन चैतन्य महाप्रभु के समकक्ष ही है, मतलब निजी, मतलब वो ऐसे है इंटीमेट जैसे, तो उस हिसाब से तो उनका पोजीशन थोड़ा ऊपर ही है। प्रभुपाद का लड़का बड़ा पोजीशन में है या प्रभुपाद का डिसाइपल? प्रभुपाद का डिसाइपल। जगदानंद तो जो है वो तो भक्त ही नहीं था ना, वो तो साथ में रहते भी नहीं थे। सत्यभामा का अवतार है, तो वो तो उनका लेवल तो मतलब महाप्रभु के मतलब, तो मैं पूछ रहा हूँ, प्रभुपाद का लड़का तो प्रभुपाद का खून है, बट अभी अगर प्रभुपाद का लड़का कभी वृंदावन जाता तो किनको किनका गाइडेंस में रखता, ये हमको समझ में आया। यस पिंकी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, साधु प्रणाम। यहाँ पर प्रभु जी हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कविराज गोस्वामी जी किसी का लेवल नहीं बता रहे हैं, यहाँ पर प्रेम भाव बता रहे हैं कि कितना महाप्रभु के प्रति उनका कितना स्नेह है, कितना लगाव है, और लेवल से इसका कोई तुलना नहीं किया जा रहा है। ओके ओके, अभी ये जो परमहंस वैष्णव, ये जो तात्पर्य है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, वैष्णव परमहंस और किंचन, तो इसमें हमको जो समझ में आया, एक्चुअली और थोड़ा पढ़ने से और क्लियर हो जाएगा आगे आने वाला श्लोक। ठीक है ज्योति माता जी, फिर विल हाँ प्रभु, I'll read again प्रभु। Yes, we'll go through that. I'll read once again. Yeah. At home I'll read again. No. We'll go through today only in the class because I also need some clarity regarding that purport. पाक करी जगदानंद चैतन्य समर्पिला। पाक करी जगदानंद चैतन्य समर्पिला। दुई जन बसी तबे प्रसाद पाइला। दुई जन बसी तबे प्रसाद पाइला। प्रसाद पाई अन्य कोइला लिंगन। प्रसाद पाई अन्य अन्य कैला लिंगन। चैतन्य विरहे दुहे कोरिला क्रंदन। चैतन्य विरहे दुई कैरिला क्रंदन। এই মতো মাস দুই রহিলা বৃন্দাবনে। यही मत मास दुई रहिला वृंदावने। चैतन्य विरहे दुखे ना जाए सहने। चैतन्य विरहे दुख ना जाए सहने। महाप्रभुर संदेश कहिला सनातने। महाप्रभु संदेश कहिला सनातने। আমি হো আসিতেছি রহিতে করি হো এক স্থানে। আমি আসিতেছি রহিতে করি এক স্থানে। জগদানন্দ পণ্ডিত তবে আজ্ঞা মাগিলা। जगदानंद पंडित तबे आज्ञा मांगिला। সনাতন প্রভুরে কিছু ভেট বস্ত্র দিলা। सनातन प्रभु किछु भेट वस्तु दिला। সনাতন প্রভুরে কিছু ভেট বস্ত্র দিলা। सनातन प्रभु रे किछु भेट वस्तु दिला। রাসস্থলীর বালুয়ার গোবর্ধনের শিলা। রাসস্থলীর বালুয়ার গোবর্ধনের শিলা। শুষ্ক পক্ক পিলু ফল আর গুঞ্জামালা। शुष्क पक्क पिलु फल आर गुंजामाला। জগদানন্দ পণ্ডিত চলিলা সব লইয়া।
जगदानंद पंडित चलीला सब लोइया ব্যাকুল হইলা সনাতন তারে বিদায় দিয়া। व्याकुल हईला सनातन तारे विदाय दिया। রন্ধন করে জগদানন্দ পণ্ডিত তা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে নিবেদন করলেন। তারপর তারা দুজন একসঙ্গে বসে প্রসাদ পেলেন। প্রসাদ পেয়ে তারা দুজনে পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বিরহে দুজনে ক্রন্দন করলেন। এইভাবে জগদানন্দ পণ্ডিত এবং সনাতন গোস্বামী একসঙ্গে প্রায় 2 মাস বৃন্দাবনে রইলেন। অবশেষে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বিরহে জনিত দুঃখ তাদের পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠল। জগদানন্দ পণ্ডিত সনাতন গোস্বামীকে বললেন যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে বলতে বলেছেন, আমি শীঘ্রই বৃন্দাবনে আসছি, আমার থাকার একটি জায়গার ব্যবস্থা করো। তারপর জগদানন্দ পণ্ডিত জগন্নাথপুরীতে ফিরে যাওয়ার জন্য সনাতন গোস্বামীর আদেশ চাইলেন এবং সনাতন গোস্বামী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে দেওয়ার জন্য কিছু উপহার তাকে দিলেন। সনাতন গোস্বামী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে দেওয়ার জন্য রাসলীলার রাসস্থলীর বালু, গোবর্ধনের শিলা, শুকনো পাকা পিকু ফল এবং গুঞ্জমালা जगदानंद पंडित के दिले। ये पीकू फल क्या है? हिंदी में क्या लिखा है? पीलू है प्रभु, पीलू। पीलू फल, इंग्लिश में पीलू फल लिखा है। क्या है ये पीलू फल, मालूम है किसी को? कदम्ब का फल होता है ना, उसको ही कहते हैं लगता है। अच्छा, हाँ हो सकता है, कृष्ण याद दिलाने के लिए हो सकता है यार। ये सुनिधि राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये 65 खुद ये समझ पाए कि इसे पंडित ने महाप्रभु यह संदेश सनातन गोस्वामी को दिया कि मैं भी वृंदावन आ रहा हूँ। हाँ, ये तो दिया था महाप्रभु ने जब जगदानंद पंडित जा रहा था वृंदावन में पुरी से, तो बोला था कि सनातन गोस्वामी को बोल देना कि मैं भी बहुत जल्दी आ रहा हूँ वृंदावन में, मेरे लिए एक वासस्थान ढूंढ के रखने के लिए। आया था ये सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के देওয়ার জন্য রাসস্থলীর বালু, গোবর্ধন শিলা, শুকনো পাকা পিলু ফল এবং গুঞ্জামালা জগদানন্দ পণ্ডিতকে দিলেন, মানে কৃষ্ণকে याद স্মরণ कराने के लिए। সেই সব নিয়ে জগদানন্দ পণ্ডিত জগন্নাথপুরী অভিমুখে যাত্রা করলেন এবং তাকে বিদায় দিয়ে সনাতন গোস্বামী অত্যন্ত ব্যাকুল হলেন। हरे कृष्ण प्रभु जी, फिर जगदानंद पंडित क्यों जा रहे थे? जब महाप्रभु भी वृंदावन आ रहे हैं तो उनके विरह में ही तो मतलब उनको अच्छा नहीं लग रहा था ना 2 मास से। जब महाप्रभु यहीं आ रहे तो वो यहाँ और रुक जाते। उन्हीं से पूछ लेते आप। तो मैं कैसे बताऊं? लेकिन हमको लग रहा है कि कब आएंगे महाप्रभु। अभी महाप्रभु बोले आएंगे, लेकिन कब आएंगे उसी लिए गए वापस, हमको लग रहा है। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, হরিয়া সবে বলো হরি হরি। चैतन्य चरितामृतम की जय, गोस्वामी की जय, की जय। हिमानंदे हरि हरि बोल।